السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ راشن کارڈ غریبوں کی عزت نفس کی شناخت، بھوک مٹانے کا ہتھیار۔ BRS حکومت نے 10 سال کے دوران غریب عوام کو غذا سے محروم رکھا۔ راشن کارڈ اجرائی کی تقریب سے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا خطاب۔ بہار میں ووٹر لسٹ میں بیرونی شہریوں کے نام کا دعویٰ مضحکہ خیز۔ پچھلے دروازے سے NRC لاگو کرنے کا بیرسٹر اویسی نے لگایا الزام، شہریت کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں۔ بورابنڈا میں خوفناک سڑک حادثہ، لاپرواہ کار ڈرائیور نے اسکوٹی سوار کو روند ڈالا۔ ظہیر آباد میں نوجوان کا قتل۔ چندرائن گٹا حدود میں ہوئے قتل واقعے کا ملزم گرفتار۔ اور 5 سال سے مخفل مکان سے انسانی ڈھانچہ برآمد، علاقے میں سنسنی، پولیس تحقیقات جاری۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا
12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड गरीबों की इज्जत नफ्स की शनाख्त है, ये गरीबों के भूख मिटाने का हथियार है। उन्होंने बताया कि रियासत में 3 करोड़ 10 लाख मुस्तहिक अफराद को ग़िज़ाई तमानियत फराहम की जा रही है और ख़ानदान के फ़ी फ़र्द को 6 किलो बारीक चावल फराहम किया जा रहा है। सूर्यापेट में राशन कार्ड्स की इजराई की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासत में 5,61,000 नए राशन कार्ड्स जारी किए गए हैं। किसी रियासत या किसी मुल्क ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत में तमाम मुस्तहिक ख़ानदानों को राशन कार्ड्स फराहम करना है। उन्होंने कहा कि 10 साल के इंतज़ार के बाद आज मुस्तहिक और गरीब ख़ानदानों का ख्वाब पूरा हो रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि गरीबों की फलाह व बहबूद हमारा अज़्म है। वज़ीर आला ने साबिक़ा BRS हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि 10 साला दौर इख्तिदार में KCR की हुकूमत ने एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया था। BRS के दौरे हुकूमत में राशन की दुकानें नहीं बल्कि शराब की दुकानें खोली गई थीं। वज़ीर आला ने सूर्यापेट में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 2.5 सालों के दौरान रियासत में 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। इस मौके पर रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी ने राशन कार्ड की इजराई को इनकलाब से ताबीर किया। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान में खुसूसी नज़रसानी के जारिया अमल के दौरान फहरिस्त में नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के शहरियों की मौजूदगी की तल्लात को मज़क्क़ा ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने इस अमल को NRC को पीछे के दरवाजे से लागू करने का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया के नुमाइंदों को उन्होंने बताया कि अगर फहरिस्त में बैरूनी शहरियों के नाम मौजूद हैं तो इलेक्शन कमीशन को यह बात खुद पेश करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो एक दस्तूरी इदारा है, खुद से यह बात कहने के बजाय ज़राए के मुताबिक कहकर यह बात कही है। सदर मजलिस ने मुतालबा किया कि जिस ज़राए का हवाला दिया गया है उसका खुलासा करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि किसी फ़र्द की शहरियत का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बल्कि वजारत दाखिला की ये ज़िम्मेदारी है और इसका एक कानूनी तरीक़ेकार होता है। उन्होंने बिहार के सीमांचल इलाके के अजला के नाम लिए और कहा कि यहाँ के पसमानदा शहरियों को बेदखल करने की एक कोशिश है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो ब्लॉक ऑफिसर के नाम जारी करें ताकि वो मजलिसी कारकुनों को इन ओहदेदारों से रुजू होने और मालूमात हासिल करने की हिदायत देंगे। नेपाली शहरियों के शामिल होने की खबरों पर सदर मजलिस ने कहा कि ये हिंद नेपाल ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, जबकि ये ताल्लुक़ पहले ही से ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया जिसे 19 जुलाई 2019 में वज़ीर क़ानून ने पार्लियामेंट में पेश किया था, जिसके मुताबिक 2016, 2017, 2019 की फहरिस्त में दूसरे मुल्क के किसी शहरी का नाम नहीं है सिवाय तेलंगाना, मगरबी बंगाल और गुजरात से एक गैर मुल्की शहरी की निशानदही की गई। फहरिस्त पर नजरसानी की अदालत में ज़ेर समात मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से राशन कार्ड, आधार कार्ड और दीगर दस्तावेज को भी शहरियत के तौर पर कबूल करने का मशवरा दिया। बिहार असेंबली इंतखाबात में महागठबंधन इत्तेहाद में शामिल होने के सवाल पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को मजलिस शिकस्त देना चाहती है। बीजेपी मुखालिफ एक हो, यही मकसद है, लेकिन ये पिछड़ों और अक़लियतों को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते बल्कि उन्हें ग़ुलाम बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजलिस पूरी ताकत के साथ बिहार असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ECI को किसने पावर्स दिया डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो SIR हो रहा है बिहार में, ये NRC बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है।
ECI को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से BLOs हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन BLOs से मिलिए और हमको बताइए कि कहाँ पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेस जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। रिश्ते होते हैं ना नेपालियों से, हमारे मधेसी लोगों से। तो कि 2003 में SIR हुआ था, हम पूछना चाह रहे हैं इन सोर्सेस से, चलिए ECI से इन सोर्सेस से पूछना चाह रहे हैं उस 2003 के SIR में कितने फॉरेन नेशनल निकले, बताओ। सातवीं बात यह है कि जुलाई 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जवाब का सवाल दिया जिसको जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया, और उन्होंने क्या कहा 19 जुलाई 2019 को कि ना 2016 में, ना 2017 में, ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला, सिर्फ 3 निकले हैं, एक तेलंगाना से, एक वेस्ट बंगाल से, गुजरात से। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं, बेशरम है ये लोग। और आठवीं बात यह है कि किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया, कटिहार 2025 में समरी रिवीजन हुआ है। अब समरी रिवीजन में वहां पर नाम जिसके नहीं आए, किसके नहीं आए कि उसकी मौत हो गई, या वो शिफ्ट हो गया, या फिर वोटर नहीं मिला। समरी रिवीजन में कोई ये बात नहीं आई कि सिटीजनशिप का मामला आया या डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल था। तो ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के वक़ार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि ECI को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे, ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको BLOs का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन BLOs के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर NRC हो रहा था, वो साबित कर रहे हैं उसको। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीजेपी की महाजी तंजीमें, RSS और विश्व हिंदू परिषद भी कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि BRS और BJP BC तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को रोकने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने तमाम BC तबक़ात से मुत्तहिद होने पर जोर दिया। रियासती वजीर का कहना था कि गवर्नर के पास जो ऑर्डिनेंस भेजा गया है, BJP को इसे मंजूर करवाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में BC, SC और ST तबक़ात की चैंपियन हैं। रियासती वजीर ने कहा कि BJP और BRS में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। BC तहफ़्फ़ुज़ात की अमलावरी को रोकने के लिए BJP कानूनी पेचीदगियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। मजालिस मुकामी और बलदियाती इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा। जस्टिस अपरेश कुमार को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह इससे पहले त्रिपुरा हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। रुकन कौंसिल 3 मार मल्लन्ना के खिलाफ तेलंगाना जागृति के वफ्द ने रियासती ख़वातीन कमीशन से रुजू होकर शिकायत की है। तेलंगाना जागृति के वफ्द ने कहा कि 3 मार मल्लन्ना ने रुकन कौंसिल कविता की तौहीन की है। वफ्द ने बताया कि मल्लन्ना ने कविता से माफ़ी नहीं मांगी है, इसलिए उनके खिलाफ ख़वातीन कमीशन से शिकायत की गई है। तेलंगाना जागृति ने 3 मार मल्लन्ना के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रुकन कानूनसाज कौंसिल 3 मार मल्लन्ना ने कौंसिल के सदरनशीन से मुलाकात करते हुए BRS रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कविता ने गुंडों के जरिए उन पर हमला करवाया है। उन्होंने कौंसिल के सदरनशीन G सुखेंदर रेड्डी से कविता की कौंसिल की रुकनियत को मनसूख करने का मुतालबा किया। मल्लन्ना का कहना था कि कविता हमेशा से BC तबके को बदनाम करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कविता के खिलाफ DGP से भी शिकायत करेंगे।
کویتا اور ان کے غنڈوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ملانہ نے الزام لگایا کہ کویتا BC طبقے کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے میڈیا کو بتایا کہ سلطان شاہی میں شکر کی مسجد کے پاس 8 لاکھ روپے کی لاگت سے سڑک کے کاموں کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے قبل بھی وہاں ترقیاتی کام کیے گئے جن کی جملہ لاگت 18 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی افراد نے سڑک کے بارے میں شکایت کی تھی، جس پر انہوں نے سیوریج لائن کے کاموں کے بعد CC روڈ کے کام شروع کروائے ہیں۔ انہوں نے توقع کی ہے کہ جاری ترقیاتی کام جلد مکمل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدر و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ جلپلی میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 5 بسم اللہ کالونی میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ ڈرینیج کے پانی کا مسلسل بہاؤ جاری ہے اور پانی مکانات میں داخل ہو رہا ہے۔ رہائشی کئی علاقوں میں تعفن پھیل چکا ہے۔ حفظان صحت کے مسائل سے بھی عوام بالخصوص بچے دوچار ہیں۔ مقامی عوام نے ارباب مجاز سے اپیل کی ہے کہ فوری اس مسئلے پر توجہ دیں تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ جلپلی میونسپلٹی کے کمشنر وینکٹارام سے بھی نمائندگی کی گئی تھی، لیکن کمشنر نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ سیکریٹریٹ، مقننہ اداروں، عدلیہ، پولیس اور دیگر دفاتر میں علاقائی زبان کے ساتھ اردو میں بھی بورڈ تحریر کیے جاتے ہیں۔ سرکاری بورڈ پر اردو میں تحریر کرنے کی صلاح کے باوجود اس پر عمل آوری کو اکثر و بیشتر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اردو تحریر کے لیے کسی مسلمہ، مترجم یا سرکاری شعبہ ترجمہ سے مدد لینے کے بجائے اڈے کے مزدوروں سے کام چلایا جاتا ہے، جس کی تازہ مثال سٹی پولیس کے عثمانیہ یونیورسٹی ڈویژن کے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کا بورڈ ہے۔ تیلگو اور انگریزی میں اسسٹنٹ کمشنر پولیس کے دفتر پر جو تحریریں ہیں وہ معنی و مفہوم کے مطابق درست ہیں، لیکن اس دفتر کے بورڈ کی اردو تحریر اس طرح ہے: پولیس کے آخری کمشنر کا دفتر۔ اسسٹنٹ کے معنی کیا آخری کے ہوتے ہیں، جبکہ گوگل ترجمے میں بھی اسسٹنٹ کو معاون و مددگار لکھا گیا ہے۔ آکسفورڈ کی ڈکشنری میں بھی اس کے معنی یہی دیے گئے ہیں۔ ذمہ دار عہدیدار کسی مسلمہ اردو دان یا محکمہ ترجمہ کی مدد نہ بھی لیتے، صرف ڈکشنری یا گوگل ترجمے پر انحصار کر لیتے تو شاید یہ غلطی سرزد نہ ہوتی۔ پولیس، بالخصوص کمشنر CV آنند، جو ایک حیدرآبادی اور اردو داں بھی ہیں، اس کا نوٹ ضرور لیں گے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع نامپلی مارکیٹ کے پاس واقع 5 سال سے بند مکان سے انسانی ڈھانچہ دستیاب ہونے سے سنسنی دیکھی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک نوجوان کی طرف سے یوٹیوب پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا گیا تھا، جس میں ڈھانچے کے نظر آنے پر پولیس حرکت میں آئی اور پھر مقفل مکان سے انسانی ڈھانچہ برآمد کیا گیا۔ پولیس، کلوز اور فورنسک ٹیمیں بھی واقعے پر پہنچ گئیں۔ ڈھانچے کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عامر نامی شخص اس مکان میں رہا کرتا تھا اور وہ کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جائیداد کو لے کر عامر اور اس کے بھائیوں میں تنازع بھی چلا رہا تھا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈھانچہ عامر کا ہو سکتا ہے۔ پولیس مختلف زاویے سے اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے ظہیر آباد ٹاؤن میں واقع فیض نگر کے رہائشی ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مہلوک کی شناخت 25 سالہ محمد تاج الدین کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کی نعش رحمت نگر علاقے میں ایک سنسان کنویں سے برآمد ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ تاج الدین دوپہر کے وقت نماز ظہر کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے، مگر رات تک واپس نہیں آئے۔ ان کی موٹر سائیکل جامع مسجد کے قریب سے برآمد کی گئی۔ اتوار کے دن پولیس کو رحمت نگر میں ایک پرانے کنویں میں لاش پائے جانے کی اطلاع ملی، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو باہر نکال کر پنچنامے کے بعد سرکاری دواخانہ منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق مہلوک کے جسم پر گہرے زخموں کے نشانات پائے گئے، جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں بے رحمی سے قتل کر کے لاش کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ چندرائن گٹا پولیس نے قتل کے معمے کو حل کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کیب ڈرائیور عبدالعزیز عرف اطہر اور ملزم یوسف کی بچپن سے شناسائی تھی اور دونوں ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ مقتول عزیز نے یوسف کو گانجے کی فروخت کے کاروبار کی طرف راغب کیا۔ اس دوران دونوں کے درمیان بحث و تکرار بھی ہونے لگی اور مقتول عزیز کی طرف سے یوسف کو گالی گلوچ بھی کی گئی۔
11 जुलाई को यूसुफ ने खुफिया सोना देने के बहाने अजीज को बालापुर तलब किया और फिर चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। जुबली हिल्स एरागड्डा सड़क पर हुए हादसे में टू व्हीलर सवार शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने एक ऑटो और टू व्हीलर को टक्कर दे दी। 36 साला टू व्हीलर सवार सत्यनारायण की बरसरे मौका मौत हो गई। नहश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले अन्नमैया में एक दर्दनाक हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक आम से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में मरने वाले 9 लोगों में 5 खवातीन हैं, जबकि 10 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजमपेट के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ट्रक ड्राइवर इस हादसे में बच गया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि सामने से आ रही कार की टक्कर से बचने की कोशिश में तवाजुन बिगड़ गया। इस अफसोसनाक हादसे पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने गहरे सदमे का इज़हार किया है। वहीं साबिक वजीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी हादसे पर अफसोस जाहिर किया है और जख्मियों के लिए बेहतर इलाज और महलूकीन के खानदानों के लिए इमदाद का मुतालबा किया है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के करीब हिसार तिरुपति स्पेशल एक्सप्रेस के काले डिब्बों में आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम हरकत में आ गए। फौरी आग पर काबू पाया गया। रेलवे हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा है और किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का पता चलाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ गणेश नगर कॉलोनी में 3 दुकानें आग लगने से खाकस्तर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर के दरमियानी शब 2:30 बजे लगी आग से वेल्डिंग, मैकेनिक और डेंटिंग की दुकानें खाकस्तर हो गईं। तीर फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। रियासत कर्नाटक के रहने वाले 23 साला मोहम्मद कफील अहमद 11 जुलाई की दोपहर से लापता हो गए हैं। वो नमाज अदा करने के लिए मोटरसाइकिल पर मस्जिद रवाना हुए थे, लेकिन ताहाल घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि हुसैनी आलम पुलिस को इत्तला दी जाए। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। राशन कार्ड गरीबों की इज्जत नफ्स की शनाख्त, भूख मिटाने का हथियार। BRS हुकूमत ने 10 साल के दौरान गरीब आवाम को ग़िज़ा से महरूम रखा। राशन कार्ड इजराई की तकरीब से वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। बिहार में वोटर लिस्ट में बैरूनी शहरियों के नाम का दावा मज़हक कैस। पिछले दरवाजे से NRC लागू करने का बैरिस्टर ओवैसी ने लगाया इल्जाम। शहरियत का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। बोराबंडा में खौफनाक सड़क हादसा, लापरवाह कार ड्राइवर ने स्कूटी सवार को रौंद डाला। जहीराबाद में नौजवान का कत्ल। चंद्रायन गुट्टा हदूद में हुए कत्ल वाक़े का मुलजिम गिरफ्तार। और 5 साल से मुखफ़्फ़ल मकान से इंसानी ढांचा बरामद, इलाके में सनसनी, पुलिस तहक़ीक़ात जारी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।